عرب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو بھی تیل جائے گا ہم اس کے پیسے ایرانیوں کو دے دیں گے، ہمارا تیل جانے، بس یہ طے ہے۔ عرب دنیا کو پروٹیکشن کون فراہم کرتا ہے سر؟ آپ مجھے بتائیں گے؟ نہیں، وہ فیل ہو گیا نا امریکہ پروٹیکشن دینے سے، وہ اسٹریٹ آف ہارمز نہیں کھلا سکتا۔ تو اب وہ ڈائریکٹ، جیسے یو اے نے ڈائریکٹ معاہدہ کر لیا تھا ایران کے ساتھ، ویسے ہی اب سارے عرب ایران سے اب ڈائریکٹ بات کر کے کہہ رہے ہیں پیسے دے دیں گے، اسٹریٹ آف ہارمز کھول دو۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کا ٹوٹل فیلئر ہو گیا۔ امریکہ نہ ان کو سیکیورٹی شیلٹر پرووائڈ کر سکا، نہ ان کو جو ہے اقتصادی کوئی شیلٹر پرووائڈ کر سکا۔ اگر اسٹریٹ آف ہارمز کھل جاتی ہے تو باب المندب بھی کھل جائے گا، یا اسٹریٹ آف ہارمز کھل بھی جائے تو باب المندب بند رہے گا۔ میرا خیال ہے کہ ایران اس معاملے کے اوپر ابھی صرف ہرمز کھولے گا، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلے گا معاملہ۔ پاکستان کو لیڈ رول لینا پڑے گا باب المندب کھلانے کے لیے، اسی لیے فیلڈ مارشل اور شہباز شریف جا رہے ہیں۔ اگر امریکہ نہیں کھلوا پایا، پاکستان کبھی بھی اپنے آپ کو ایک فیوڈ کے اندر نہیں ڈالے گا۔ ہاں، اگر وہ سعودی زمین کے اوپر کوئی حملہ ہوگا تو پاکستان رسپونڈ کرے گا، یہ میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں۔ اس وقت سعودی عرب پر اسرائیل حملہ کر نہیں رہا، اس وقت سعودی عرب کو تھریٹ ہے ہوتی سے، اس وقت سعودی عرب کا پرابلم ہے ریڈ سی۔ اگر پاکستان سعودی عرب کی مدد ریڈ سی اور ہوتیز پر نہیں کرتا ہے تو میرے خیال میں ہم اپنی ریلیونس سعودی عرب کے آگے کھو دیں گے۔ ویل بی آف نو یوز فار دیم۔ السلام علیکم ناظرین، مزمل سرورتی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں مزمل سرورتی۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں عبداللہ حمید گل صاحب۔ السلام علیکم عبداللہ حمید گل صاحب۔ السلام علیکم مزمل صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ عبداللہ حمید گل صاحب، کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ عمان اور ایران کے درمیان جو ابنائے ہرمز کا معاہدہ ہو رہا ہے اس میں کوئی 7% ٹول ہے جس کو والنٹری فی کا نام دیا جائے گا، لیکن وہ ملے گی ایران کو، اور امریکہ جو ہے وہ اب جان چھڑانا چاہتا ہے کہ یہ معاہدہ ہو جائے اور وہ خطے سے نکل جائے۔ آپ کو ایسا لگتا ہے یا ایسی کوئی بات نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ مزمل صاحب، آپ کو اور ناظرین کرام کو السلام علیکم۔ بالکل آپ کے ساتھ میری متعدد اس کے اوپر بحث ہوتی رہی، تند و تیز ہم بات بھی کرتے رہے۔ آپ ایک بڑے اچھے، آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور اس کے اندر میرے ہمیشہ جوابات جو تھے وہی تھے جو آج بھی ہوں گے۔ اور اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایران نے گراؤنڈ کے اوپر یہ بیٹل جیتی ہے، اور ابنائے ہرمز کو اس نے جس اسٹریٹجک انداز کے اندر اور ٹیکٹ فلی ڈیل کیا ہے، یہ شاید میرے خیال میں ان کو بہت کریڈٹ دینا چاہیے۔ اب جو اس کے اندر جو شمالی راستہ تھا جس کے حوالے سے بات کی گئی، اور ایران نے جب پہلے بھی معاہدہ طے پایا اور جنگ بندی درمیان میں ہوئی، ایک ایم او یو جب طے پایا تو یہی بات کی گئی کہ ایران کے مختص شدہ راستوں سے آپ گزاریں۔ اس سے پہلے امریکہ ایک آپریشن فریڈم کے نام سے مئی 2026 کے اندر ایک کوشش کر چکا تھا، جس کے اندر وہ جو جنوبی راستہ تھا اس کا استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے اندر بہت سارے مسائل تھے۔ 2 جہاز بھی انہوں نے اپنے جو نیول شپس تھے وہ گزارے، لیکن سپر ٹینکر گزارنا چاہتے تھے وہ، تاکہ پتہ چل جائے کہ سپر ٹینکر بھی اس تنگ راستے سے جو صرف چند 100 میٹر کا ہے اس سے گزر سکتا ہے یا نہیں گزر سکتا۔ اس کے اوپر جب معاہدہ جو ایم او یو سائن ہو گیا، اس کے بعد امریکہ نے کر دی اس کی خلاف ورزی، اور قطر کے ایک جہاز کو، سپر ٹینکر کو وہاں راستے سے گزارنا چاہا۔ قطر کو نہیں علم تھا، اور جب انہوں نے وہاں سے گزارا جہاز تو ایران نے اس کے اوپر ایک پروجیکٹائل سے حملہ کر دیا۔ قطر نے احتجاج ریکارڈ کیا، ایران نے ان کا احتجاج قبول کرنے سے اس لیے انکار کیا، حالانکہ وہ اس ایم او یو کے اندر موجود تھے، ان کے وزیر اعظم صاحب عبد الرحمان صاحب وہاں تشریف لائے ہوئے تھے، لیکن اس لیے ریجیکٹ کر دیا کہ انہوں نے کہا جو ہمارے بتائے گئے راستے تھے آپ نے اس پر عمل نہیں کیا۔ یہ ایک دھوکہ تھا امریکہ کی جانب سے قطر کو، اور قطر کو اس کا احساس ہو گیا بعد میں۔ however پھر یہ جنگ دوبارہ پھوٹ پڑی۔ جنگ جب دوبارہ پھوٹ پڑی تو اس کے بعد پھر وہی راستے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، اور متعدد جو عرب کے جہاز تھے جس میں سعودی عرب کا بھی تھا ان کو نشانہ بنایا گیا، یعنی کہ وہ راستہ ایک قسم کا بند کر دیا گیا۔
अब जो ये बातचीत हो रही है ओमान के माबैन, देखिए ओमान के अंदर आप जानते हैं कि ईरान का हैवी वाटर भी मौजूद है, जो कि न्यूक्लियर के लिए इस्तेमाल होता है, और इसी तरह से रूस के अंदर उनका लेस एनरिच्ड यूरेनियम भी मौजूद है एक बड़ी तादाद में। अब दूसरी जानिब ओमान के साथ आपको ये भी इल्म है कि शुरू दिन से ईरान का ये मौक़िफ़ रहा कि आबनाए हुर्मुज़ को ओमान और ईरान मिलकर कंट्रोल करेगा, क्योंकि जेनेवा कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी 1982 मौजूद है, जिसके तहत ये दोनों ममालिक की टेरिटोरियल वाटर्स कहलाते हैं, क्योंकि ये दरमियान में सिर्फ 33 किलोमीटर का एरिया है जो कि आबनाए हुर्मुज़ में एक जगह आके तंग हो जाता है। इस वजह से वो इसको टेरिटोरियल वाटर कहलाते हैं। अब ये तमाम बातें तो सामने रखें, तो अब आपको ये नेक्स्ट आपका सवाल कि जी इसके ऊपर कोई टैरिफ लगेगा या कुछ लगेगा। देखिए, ईरान ने ये कहा था कि हम इस पे टैरिफ लगाएँगे, कोई ना कोई इसके ऊपर टोल वसूल करेंगे, कोई लेवी आयद करेंगे, और इस बात को रिजेक्ट नहीं किया गया था, बल्कि उस जो मुआहदा था, जो कि एक एमओयू साइन हुआ, उसके अंदर ये शर्त रखी गई थी कि हम 2 माह के अंदर 60 दिन का वक़्त दिया गया था, और 60 दिन के अंदर ये तय किया जाएगा कि इस चीज़ का मुस्तकबिल क्या होगा। और आपको याद भी होगा कि उसमें ये बड़ा वज़ाहत से लिखा गया था कि 2 माह तक ईरान किसी भी किस्म की कोई फीस वसूल नहीं करेगा, यानी कि 2 माह के बाद कर पाएगा। अब अमेरिका आपको मालूम है कि पैसे तो देता किसी के नहीं है। हाँ, ईरान के जो पैसे उसने वैसे जो उसके अपने पैसे हैं ईरान के, जिनको मुंजमद कर दिया गया था मुख्तलिफ दुनिया के बैंकों के अंदर, उनको तो अब मरहलावार उनको इजरा करना पड़ेगा। यानी कि जब भी बात होगी, इस्लामाबाद एकॉर्ड के जो बुनियादी असूल तय हुए हैं, उन्हीं के ऊपर होगी। छोटी-मोटी लेकिन रद्द-बदल हो ऐसा सकता लग है। रहा है कि अब उस पर कोई बातचीत अभी नहीं होगी, फ्रोजन एसेट्स कोई नहीं खुलेंगे, सैंक्शंस नहीं हटाई जाएंगी, सिर्फ आबनाए हुर्मस खुलेगा और एक वॉलंटरी फी के नाम पर अरबों ने ये अंडरटेकिंग दे दी है कि हम पैसे दे देंगे, आप इसका नाम चाहे वॉलंटरीली फी रख दें, क्योंकि आबनाए मलाइका पे भी एक वॉलंटरीली फी मौजूद है कि रजा कराना तौर पे कोई देना चाहे तो दे दे, इसका भी नाम रजा कराना रखा जाएगा। लेकिन अरब अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि हमारा हर जहाज देगा। तो ये एक मुआहदा है अरबों और ईरान के दरमियान, जिसमें अमेरिका फरीक नहीं होगा और कह देंगे जी आबनाए हुर्मस खुल गया है, अमेरिका ब्लॉकेट खोल देगा और उसके बाद आगे कुछ नहीं है, ना सैंक्शंस हटेंगी ना फ्रोजन एसेट्स मिलेंगे। नहीं सर, सब कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं हुआ करता। आप ज़रा गौर फरमाइए कि आज ही के दिन में अमेरिका ने मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियाँ उनकी 3 कंपनियों के ऊपर और इराक के ऊपर कई कंपनियों के ऊपर वो हटा दी हैं, ऑलरेडी नहीं, वो हटा दी इराक हैं। से हटाई हैं, ईरान से नहीं हटाई, इराक से जी, हटाई। जी, इराक से हटाई हैं, लेकिन ईरान की भी जो 3 कंपनियाँ उसमें मुलव्विस थीं, जो उनके साथ थीं, उनके ऊपर भी, यानी कि इराक पे से हटा दी, तो वो कंपनियाँ उनके साथ काम कर रही थी, तो उनके ऊपर भी इजाज़त दे दी। ये तो हटानी पड़ेगी, ये तो इनके ऊपर पाबंदी रख नहीं पाएँगे, अमेरिका की अभी पोज़ीशन नहीं है। और ये जो अरब दुनिया ने ये किया है, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ों को आप ज़रा गौर फरमाइए। क्या ये सिर्फ अरब जहाज़ ही हैं जो जाएँगे? क्या यूरोपियन ममालिक के जहाज़ इसमें से नहीं तेल लेते थे? तो सर बात ये है नहीं, कि वो आप तेल तो कान उधर अरबों से का ही होगा पकड़ें। ना। देखें, अरब ये कह रहे हैं कि हमारा जो भी तेल जाएगा हम उसके पैसे ईरानियों को दे देंगे, हमारा तेल जाने दें, बस ये तय है। मैं आपको फिर गुज़ारिश कर दूँ, अरब दुनिया को प्रोटेक्शन कौन फराहम करता है सर? आप मुझे बताएँगे? नहीं, वो फेल हो गया ना अमेरिका प्रोटेक्शन देने से, वो स्ट्रेट ऑफ ये हॉर्मस ये नहीं खुला सकता। तो तो अब वो फिर डायरेक्ट, जैसे यूएई ने डायरेक्ट मुआहदा कर लिया था ईरान के साथ, वैसे ही अब सारे अरब ईरान से अब डायरेक्ट बात करके कह रहे हैं पैसे दे देंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खोल दो। तो फिर इसका मतलब ये है कि अमेरिका का टोटल फेलियर हो गया। अमेरिका ना उनको सिक्योरिटी शेल्टर प्रोवाइड कर सका, ना उनको जो है इक्तसादी कोई शेल्टर प्रोवाइड कर सका। और इससे ये वज़ाहत नज़र आ रही है मोहम्मद बिन सलमान साहब के उस बयान से, जिसके अंदर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन किया और ये कहा कि जनाब अगर आप ये अपना शौक जारी रखेंगे, तो फिर आपको अपने तमाम अड्डे यहाँ से फ़ारिग करने पड़ेंगे। उसका पहला असर आपने देख लिया कि
غالباً 30 सितंबर को इराक से अपना अड्डा जो खाली कर रहे हैं। और पहले इसमें ये कहा जा रहा है कि जी ये तो हमारा एक मुआहदा था। भई तौसीए भी तो होती रही थी इतने सालों से, इस बार तौसीए क्यों नहीं हो रही? ये है सवाल। तो इसी तरह से दीगर गल्फ के अंदर जो ममालिक हैं वो भी तौसीए नहीं करेंगे। इससे वज़ाहत से नज़र आ रहा है कि अमेरिका इज़ अ रिसीडिंग पावर। अमेरिका अपनी वक़्त और अपनी अहमियत को खो रहा है। और ईरान का जो टैरिफ है, ये जो भी आप इसका नाम दे दें, ये वॉलंटरीली आप कर लें या आप वैसे ही कर लें, लेकिन वो आपको याद होगा कि मैंने आपके साथ मुतअद्दिद बार ये बात गुज़ारिश की थी कि वो कभी भी जेब से पैसा नहीं देगा अमेरिका, वो हमेशा देगा किसी और की जेब के ऊपर उसकी नज़र होती है। इस वजह से वो दूसरों से पैसा दिलवाएगा। ये पैसे पहले भी 300 बिलियन जो ईरान के लिए उन्होंने कॉम्पेंसेशन रखी हुई थी, वो तब भी उन्होंने अरब दुनिया से ही दिलवानी थी, खुद नहीं पैसा देना था। लेकिन अब क्या होगा कि जब अरब दुनिया वो कॉम्पेंसेशन देगी, तो जो अरब दुनिया ने अमेरिका में इन्वेस्ट करना है, उसके अंदर वो फिर कमी कर देगी और वो फिर यहाँ से वो कान इधर से पकड़ें या आप इधर से पकड़ें, बात तो वही बराबर आ जाएगी। एंड ऑफ द डे पे अमेरिका विल बी द नेट लूजर। अरब दुनिया को तो समझ आ गई कि ईरान खित्ते के अंदर एक नई ताकत के तौर पर उभर आया है और अब इसका मतलब यह है कि ईरान के साथ अरब दुनिया अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश करेगी। इसका मतलब वजाहत से ये कहा जा सकता है कि मजीद तिजारत होगी। जैसे पाकिस्तान की ही मिसाल ले लीजिए, $3 बिलियन का तकरीबन हमारा इस टाइम पे ट्रेड ईरान के साथ चल रहा है और ये आगे बढ़कर हम चाहते हैं कि इस साल के आखिर तक 10 बिलियन कर दिया जाए। तो इसी तरह से बाकी ममालिक भी जो है वो अपना ट्रेड बढ़ाएंगे। जब ट्रेड बढ़ेगा तो ईरान को आप कामयाबियों से और एक बेहतर इक्तसादी हालात से कैसे रोक पाएंगे सर? अच्छा, चलें, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खुल जाती है तो बाबुल मंदब भी खुल जाएगा या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खुल भी जाए तो बाबुल मंदब बंद रहेगा? अभी सर ये मेरे ख्याल में बाबुल मंदब तो अभी नहीं खुल रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी वो पहले देखेंगे कि हालात क्या कहते हैं, क्या वाकयात कहते हैं। बाबुल मंदब के ऊपर भी हमारी गुफ्तगू हुई थी। मैंने आपसे यही कहा था कि बाबुल मंदब वो बंद नहीं मुकम्मल कर सकते, लेकिन वो वहाँ की ट्रैफिक को मफलूज कर सकते हैं और जो उन्होंने किया, आज भी एक गालिबन सऊदी जहाज को उन्होंने वहाँ उसके लिए मुश्किलात पैदा की हैं। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि ईरान इस मामले के ऊपर अभी सिर्फ हुर्मुज़ खोलेगा, स्टेप बाय स्टेप चलेगा मामला और बहरहाल जब भी बात होगी तो वो मुआहदा जब भी तय होगा या मजीद बातचीत होगी या न्यूक्लियर पे बात होगी तो वो इस्लामाबाद एकॉर्ड के मुताबिक होगी। छोटी मोटी रद्दोबदल हो सकती है लेकिन बुनियादी ढांचा वही रहेगा। अमेरिका को उनके फ्रोजन एसेट्स जो हैं वो अनफ्रीज करने पड़ेंगे बिकॉज दे डोंट हैव अ चॉइस। तो फिर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सऊदी अरब रवाना हो चुके हैं और ऐसा लगता है कि इस बार जो दिफाई मुआहदा है हमारा, उसमें बाबुल मंदब को खुलाने के लिए पाकिस्तान के एक्टिव रोल की बात होगी। जो 14 मुल्कों का इत्तेहाद बना है वो अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट है। पाकिस्तान को लीड रोल लेना पड़ेगा बाबुल मंदब खुलाने के लिए, इसीलिए फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ जा रहे हैं। देखिए सर, एग्रीमेंट तो उनका अमेरिका के साथ भी है ना, तो खुलवा लिया उसने। अगर अमेरिका नहीं खुलवा पाया, पाकिस्तान कभी भी अपने आप को एक फ्यूड के अंदर नहीं डालेगा। हाँ, अगर वो सऊदी जमीन के ऊपर कोई हमला होगा तो पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। लेकिन अगर वो बाबुल मंदब या किसी दूसरी टेरिटरी के अंदर जाना है तो आई डोंट थिंक कि इस टाइम पे हमारी ये पोजीशन है या हम ऐसा करना चाहेंगे, क्योंकि सऊदी अरब के पास बाबुल मंदब खुलवाने के जो कुछ चीजें मौजूद हैं, जिनमें उनकी बहरिया है जो यकीनन पाकिस्तानी बहरिया से बहुत अच्छे जहाज उनके पास मौजूद हैं। इसी तरीके से उनकी एयरफोर्स है जो कि एक बहुत अच्छी एयरफोर्स है, बड़े बेहतरीन जहाज हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है और इसी तरीके से उनके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी है। और अगर इन सब के बावजूद वो आप बाबुल मंदब न खुलवा पाए तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा, ये वो सवाल है। इसलिए पाकिस्तान का रोल इस टाइम पे ज्यादा मीडिएशन के जरिए किरदार अदा करेगा। फिर अगर सब कुछ सऊदी अरब के पास है तो उन्होंने हमारे साथ दिफाई मुआहदा क्यों है किया है? उन्हें फिर हमारी जरूरत नहीं है, तो उन्होंने खुद ही करना है, तो हमारे साथ दिफाई मुआहदा किस बात के लिए है?
वेरी वाइज क्वेश्चन, वेरी वाइज क्वेश्चन। देखिए, इसके अंदर सबसे बड़ी जो बात है वो इसलिए क्योंकि अमेरिका का जितना असला सऊदी अरब के पास मौजूद है, ये रियासत इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये मुआहदात में भी शामिल है और साथ ही साथ जो जहाज़ों के अंदर और उनके इक्विपमेंट में सोर्स कोड होते हैं, उनको वो अमेरिका किसी टाइम पे भी मफलूज कर सकता है। इजराइल के एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स थे, जिसके ऊपर उन्होंने ग्रेटर इजराइल का नक्शा पेश किया। सऊदी अरब के हवाले से बहुत सारे उन्होंने मनफी बयानात दिए, जिससे सऊदी अरब का माथा ठनका और उन्होंने पाकिस्तान के साथ दिफाई एग्रीमेंट किया। और अभी भी जो पाकिस्तान के जो हमारे एयरफोर्स का स्क्वाड्रन मौजूद है, वो इसराइली सरहद के जो उनके मतलब क्रो फ्लाइट के अंदर वो उनके करीब तरीन जगह कहलाती है। इस वजह से मेरा ख्याल यही है कि पाकिस्तान का जो मुआहदा उसके अंदर उसकी बुनियादी वजह इसराइल है, ना कि उसका बुनियादी वजह कोई और है। अमरीकी असला मजबूर हैं, सऊदी अरब के लोग उनको समझ आ गई है। और मेरा ख्याल है कि जो आज का ये दौरा फील्ड मार्शल साहब का और वजीर आजम साहब का है, इसके अंदर बहुत सारी मानी खेज गुफ्तगू, मीनिंगफुल कोई कंक्लूजन की तरफ हम इंशाल्लाह बढ़ेंगे, जिसके अंदर नहीं, पर पाकिस्तान देखें की अब्दुल्लाह हमीद गुल साहब, इस वक्त सऊदी अरब को इजराइल से कोई थ्रेट नहीं है। इस वक्त सऊदी अरब पर इजराइल हमला कर नहीं रहा। इस वक्त सऊदी अरब को थ्रेट है हूथी से। इस वक्त सऊदी अरब का प्रॉब्लम है रेड सी। अगर पाकिस्तान सऊदी अरब की मदद रेड सी और हूथीज पर नहीं करता है, तो मेरे ख्याल में हम अपनी रेलेवेंस सऊदी अरब के आगे खो देंगे। विल बी ऑफ नो यूज फॉर देम। सुरवरती साहब, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान और जब सऊदी अरब के दिफाई मुआहदात हुए, स्ट्रेटेजिक मुआहदात हुए, तो उसके अंदर बड़ी वजाहत से मेरे ख्याल में कुछ चीजें सामने आई। पहली बात यह है कि उसके अभी तक जो डिटेल्स हैं उस मुआहदे की, वो हमारे सामने तश्तबाम नहीं हुई। दूसरी जानिब जब पाकिस्तान को भी तो इस टाइम पे सबसे ज्यादा अफगानिस्तान की तरफ से तकलीफ है, तो क्या सऊदी अरब ने अपने ट्रुप्स भेजे हैं या यहाँ जहाज उनके आए हैं? तो वो भी बात नहीं हुई। मैं ये नहीं कहना चाहता कि सऊदी अरब को ये करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी जो डिफेंस डील है उसकी नेचर के अंदर यकीनन सऊदी अरब को फिलहाल इजराइल से खतरा नहीं, लेकिन मुस्तकबिल के लिए उन्होंने मंसूबाबंदी अभी से की है। और उनके चाइनीज टेक्नोलॉजी और जो पाकिस्तान की कोलैबोरेशन के साथ काम हो रहा है, वो रियासत इसराइल के लिए ही है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और पाकिस्तान ने फिर मेरी राय ये है कि अगर पाकिस्तान इस वक्त हूथीज के साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं, और पाकिस्तान इस वक्त रेड सी को खोलने के लिए कोई किरदार अदा करने के लिए तैयार नहीं, तो पाकिस्तान को उस 14 मुल्की इत्तेहाद का भी हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। हम क्यों बने उस 14 मुल्की इत्तेहाद का हिस्सा जो रेड सी के लिए बनाया है सऊदी अरब ने? और फिर हमारे डिफेंस एग्रीमेंट की भी कोई उन्हें ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल है फिर तो पाकिस्तान एक दफ़ा जब यमन के लिए फ़ौजें मांगी थी 2014 में और हमने इनकार किया था, तो फिर पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहुत ख़राब हो गए थे और कशीदा हो गए थे और सर्द मैरी हो गई थी। मैं समझता हूँ ये जो दौरा है शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल का, इसमें भी अगर हम कोई अपना रोल अज्यूम नहीं करते तो फिर सारी गर्मजोशी ख़त्म हो जाएगी और दोबारा सर्द मैरी की तरफ चले जाएंगे। जी, मैं फिर वही बात करूंगा कि ये जो मुआहदात हुए हैं वो उसकी नेचर से ही देख के ही बताया जा सकता है। हाउएवर, मेरा ख्याल है कि इसी वजह से सऊदी अरब की जानिब से कोई मनफी बयान पाकिस्तान के हवाले से नहीं आया। 14 ममालिक का जो इत्तेहाद है उसके अंदर बहुत सारी और चीजें भी हैं। उसके अंदर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, उसके अंदर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हो सकते हैं, उसके अंदर इंटेलिजेंस के जो तरीक़ेकार हैं उनकी वजाहत हो सकती है, उसके अंदर जो आपके स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उनको आपने किस तरफ मूव करवाना है, इस किस्म की बातें हो सकती हैं। सप्लाई लाइन्स हो सकती हैं, बेहतर हिकमत अमली हो सकती
सकती है, वगैरह वगैरह। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि 2014 में जो पाकिस्तान ने उस टाइम पे 27 बटालियन जो थी वो भेजने का फैसला किया गया था, लेकिन पार्लियामान ने जब डिस्कस किया तो मियां नवाज शरीफ उस टाइम पे मौजूद थे, उन्होंने पार्लियामान में ले गए और वो पार्लियामान के अंदर बात आई गई हो गई। राहील शरीफ साहब उस टाइम पे आर्मी के सरबराह थे और उस टाइम पे फिर ये मामला यकीनन सऊदी अरब को नागवार गुजरा था। लेकिन अब क्योंकि हमारी सूरत हाल फर्क है, ये जो 14 ममालिक का इत्तेहाद है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने हूतियों के ऊपर जा चढ़ना है, बल्कि आपका इत्तेहाद से उनके ऊपर एक प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और जाहिर है ईरान के साथ कुछ ले और कुछ दे की बुनियाद के ऊपर, जिस तरह से अभी आपने ये टैरिफ की बात कही है, उस तरह से कुछ एक हाथ देंगे और एक हाथ उनसे वसूल करेंगे। तो बाबुल मंदब विद द पैसेज ऑफ टाइम खुल जाएगी। मिलिट्री ऑप्शंस मेरे ख्याल में फिलहाल उसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा मां सवाए मजीद हौलनाक तबाही के। नहीं, फिर आप ये देखें, अमेरिका और सऊदी अरब का इत्तेहाद है अगर, तो जब इराक पर से सऊदी अरब पर हमले हुए तो अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ मिलकर इराक पर बमबारी की, और ईरानी जो प्रॉक्सीज थी इराक में जो ईरान पर हमले कर रही थी उन पर हमले किए। तो वो भी तो अगर उनका सऊदी अरब का अमेरिका के साथ मुआहदा है तो सऊदी अरब तो हूथीज को मारने के लिए तैयार है, और उसने इराक में उन निजी मिलिशियाज को भी मारा जो हूथीज के लिए लड़ रहे थे। सेम इज द केस, अगर पाकिस्तान नहीं तैयार होगा तो फिर पाकिस्तान का एग्रीमेंट मुझे लगता है कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान का एग्रीमेंट इस नहज का है ही नहीं है। सऊदी अरब और इराक का वहाँ मामला फ़र्क था। इराक के अंदर अमरीकी फ़ौज भी मौजूद थी। इराक से उनको भी ख़तरा था और वहाँ वो जब आईएस के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे तो उस टाइम पे ये एक उनका अपना एजेंडा शामिल था, जबकि पाकिस्तान का बाबुल मंदब के ऊपर अपना ज़ाती एजेंडा मौजूद नहीं है। पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक सतह के ऊपर माज़ी में भी सऊदी अरब के साथ खड़ा था, आज भी खड़ा है। और मैंने आपसे कहा कि इसमें बहुत सारी चीजें और डिस्कस हो सकती हैं। इसके अंदर अगर आप ये ख्याल करें कि इस टाइम पे हमारे पास ट्रूप्स ही नहीं है हजूर, अगर हमारे पास ट्रूप्स होते तो एफसी वेस्ट हम क्या रेज करते। एफसी वेस्ट जो बलूचिस्तान में रेज हो रही है उसका मकसद क्या है? अगर ट्रूप्स होते तो फिर तो हम फौरन बलूचिस्तान में दे देते। इस टाइम पे खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर और साथ ही साथ इंडियन पूरे बॉर्डर के ऊपर एक हाई टेंशन चल रही है और पाकिस्तान की अफवाज वहां डिप्लॉयड हैं, क्योंकि कई जगह पे डी एस्केलेशन 2025 के बाद से नहीं की गई अमेरिका या इंडिया की जानिब से। इस वजह से पाकिस्तान के पास तो इस टाइम पे स्पेयर करने के ट्रूप्स मौजूद ही नहीं है। और इस टाइम पे जो हमारे हॉस्टाइल एयर बेसेस हैं उनके ऊपर, जिनको हम फॉरवर्ड एयर बेसेस कहते हैं, उनके ऊपर भी जो एयर डिफेंस अलर्ट के ऊपर लोग बैठे हुए हैं वो तो वहां बैठे हुए हैं। हमारे पास तो इतने जहाज ही नहीं है कि हम जाके इस टाइम पे पाकिस्तान की जो थ्रेट लेवल है उसको हम कमजोर कर दें और जाके हम वहां कहीं और ले जाएं। तो ये इस टाइम पे बहुत सारे इसके पहलू हैं। मैंने आपसे गुजारिश किया एक दफा फिर, पाकिस्तान सऊदी अरब के जो मुआहदात हैं उनकी नौइयत का इल्म नहीं हमें। जब हमें इल्म नहीं है तो फिर हम उसके ऊपर कैसे ये कह सकते हैं कि ये मुआहदा रहेगा या नहीं रहेगा? क्योंकि अगर एतराज करे तो करे, सऊदी अरब करे। सऊदी अरब ने तो अभी तक कुछ बोला नहीं है। हाँ, इसके लिए कोई मीडियम जो एक रास्ता है, मिडिल रास्ता, वो निकाला जा रहा है और बाबुल मंदब खुल जाएगी, फिक्र ना कीजिए। अच्छा, बाबर मंदब खुल जाएगी। तो आपको नहीं लगता कि लड़ना पड़ेगा हूथियों के साथ बाबर मंदब खुलाने के लिए? नहीं सर, मेरा नहीं ख्याल के लड़ना पड़ेगा। कोई छोटी मोटी कोई स्कर्मिश हो गई तो और बात है, लेकिन हूथियों के साथ लड़ने का फायदा नहीं होगा ना, क्योंकि रिटेलिएशन में वो अगर आपके वहाँ जिस तरीके से मुख्तलिफ सऊदी अरब की फैसिलिटीज हैं, आरामको की फैसिलिटीज हैं, दीगर की हैं, अगर उनको निशाना बनाएंगे तो उससे सऊदी अरब का इक्तसादी नुकसान होगा। और यही वजह है कि तमाम अरब ममालिक ने मिलकर ईरान को वो जो एक फीस है वो देने का फैसला किया है कि ठीक है यार, हमसे पैसे ले लो, कम से कम कारोबार तो चलता रहे, वरना तो कारोबार स्टैंड स्टिल हो गया है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो ईरान से पाकिस्तान के खिलाफ बातें आ रही हैं, वो मरंडी साहब भी और ईरानी जो हैं वो भी पाकिस्तान के खिलाफ गुफ्तगू करना शुरू हो गए हैं, ईरानी दानिश्वर, इसकी क्या वजह है?
आई थिंक टू मच एक्सपेक्टेशन लेवल वाज देयर। ऐसी बात नहीं है कि जो उनकी लीडरशिप है वो बड़ी मैच्योर है। वो पाकिस्तान के साथ कल भी बहुत शुक्रगुजार थी, आज भी शुक्रगुजार है। कुछ ज़ाहिर है हर मुल्क में कुछ मुख्तलिफ राय ज़रूर होती है। जिस तरह से पाकिस्तान में कई लोगों की आरा ईरान के हवाले से मस्बत नहीं है, सो व्हाट। इसी तरह से ईरान के अंदर भी वो एक मुख्तलिफ राय है। लेकिन उस राय को ये देखना है कि क्या वो राय पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात को खराब कर रही है, तो जवाब तो नफी में है। वरना कल उनके वजीर तिजारत जो पाकिस्तान तशरीफ लाए हुए थे, आप खुद मुझे बताएं कि फिर उनको लाने की जरूरत नहीं थी और फिर कई दिन वो रह के गए वजीर दाखिला, तो वो क्यों रह के गए? इसका मतलब यह है कि ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है, मनफी रुझानात नहीं है। हाँ, अपनी अपनी राय होती है लोगों की, वो तो कायम रहनी चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने जब साल्सों के नाम लिए हैं तो पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। ऐसा लगता है कि अब ये जो माली पाकिस्तान का नाम मामलात हैं, कैसे लेंगे? पाकिस्तान ने तो खामोशी इख्तियार कर ली ना। पाकिस्तान ने ये कहा कि वी हैव डन इनफ। ईरान को भी समझाया, अमेरिका को भी समझाया, दोनों की तरफ से जब ना माने तो सालिश क्या करे बेचारा। सालिश ने जितना करना था, यही बड़ी बात थी कि इनिशिएट तो कराया था ना। सार मैंने फिर बात कहूंगा कि जब भी मामलात आएंगे इस्लामाबाद एकॉर्ड के ऊपर आएंगे। अमेरिका के सदर की एक और मैं गुजारिश करता चलूं कि अमेरिका की सदर ने ये आज भी उनका बयानात चल रहे थे कि हम मजीद असला जो है वो बना रहे हैं, मजीद फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, मजीद जो है वो असेंबली लाइंस लग रही हैं। बिल्कुल लग रही हैं, लेकिन वो जब तैयार होंगी लग के, तब तक डोनाल्ड ट्रंप सदर नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको बताया गया है 2030 के अंदर जिस तरीके से मैं जो इनके साथ लॉकहीड मार्टिन के साथ साइन किया है मिसाइल इंटरसेप्टर्स बनाने का लिए पेट्रियट का, तो वो $58.6 बिलियन की एक डील है और ये बहुत बड़ी डील है, जिसके अंदर वो लॉकहीड मार्टिन कहता है कि ये सन 2030 तक हम इतने 2000 के करीब मिसाइल बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे, अपने आप को कर लेंगे। तो 2030 में डोनाल्ड ट्रंप कहां खड़े होंगे? दूसरा बोइंग है। बोइंग कंपनी ने यह कहा है कि जो मिसाइल के अंदर सीकर लगते हैं, वो सीकर जो है वो उसके बगैर तो मिसाइल का कोई फायदा नहीं है। वो 650 सालाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। वो 2030 तक सीकर 850 तक लेके चले जाएंगे, यानी कि 2000 मिसाइल भी बन गए तो उनके अंदर सिर्फ 850 ही कामयाब होंगे। तो कौन जीता है तेरी जुल्फ के सहारे? डोनाल्ड ट्रंप की तो वैसे ही जुल्फें बिखरी हुई हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ बात करने का। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू। थैंक यू सर।